سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں ہوں گوہر بٹ اور آج ہم آئے ہیں سیف اللہ بٹی صاحب کے پاس۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ شہر اعتکاف کا جو میکینزم ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، لوگ یہاں پر کس طرح اکٹھے ہوتے ہیں، ان کو یہاں پر مینیج کرنا، ان کی رہائشیں، ان کا کھانا پینا اور ان کی صحت کا خیال رکھنا یہ کیسے ممکن ہوتا ہے۔ سیف اللہ بٹی صاحب سر بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ پلیز ہمیں بتائیے گا یہ میکینزم کس طرح کام کرتا ہے۔ السلام علیکم، شکریہ گوہر بٹ صاحب آپ کا کہ آج آپ نے خصوصی ٹائم نکالا۔ یہ شہر اعتکاف 2024 جو کہ اس سال شروع ہو رہا ہے، اس میں پورے پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین شریک ہوتے ہیں۔ مردوں کے لیے الگ رہائش گاہ کا انتظام کیا گیا اور خواتین کے لیے الگ کیا جاتا ہے۔ تو ان کا پورا انتظامی سٹرکچر اور ان کو ڈیل کرنے کے لیے تقریباً 150 کے قریب ہماری کمیٹیز بنی ہوئی ہیں مختلف۔ اس میں الاٹمنٹ کمیٹی ہے، مرکزی کمیٹی ہے، اس میں میڈیا کمیٹی ہے، اس میں انٹرنیٹ کمیٹی ہے، اس میں کھانے کی کمیٹی ہے، مختلف کمیٹی ہیں جو ان کو ان کی رجسٹریشن کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ان کو ابھی کوپن جاری کرتے ہیں، اس کوپن کے اوپر اس کا بلاک لکھا ہوتا ہے۔ اس کے ہم نے پوری بلڈنگ کو 10 بلاک میں تقسیم کیا ہوتا ہے، عثمانی بلاک، جیلانی بلاک، مدنی بلاک۔ تو اس کے اندر اس کو ہم نے ایک روم الاٹ کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر حلقہ نمبر لکھا ہوتا ہے کہ جی آپ نے اس حلقے کا آپ کو فلانا نمبر الاٹ کیا جاتا ہے۔ وہ جب اعتکاف کے لیے یہاں پہ آتا ہے تو سب سے پہلے اس بلاک میں جاتا ہے اور بلاک کی وہاں پہ انتظامیہ ایک ہوتی ہے، وہاں پہ وہ اپنی اٹینڈنس لگواتا ہے۔ اس کے بعد اس کو ایک روم الاٹ کر دیا جاتا ہے اور روم کے اندر جو ہے نا وہ اپنا بستر وغیرہ لگا دیتا ہے اور ایک شیڈول کے مطابق نماز اور باقی ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور جو کھانا ہوتا ہے وہ سحری اور افطاری ایک الگ ایک کمیٹی ہے جو کہ ان کو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے پوری کے پورے۔ یعنی کہ مٹن ہوتا ہے، بیف ہوتا ہے اور ایک ہائی سٹینڈرڈ کھانا ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح جو ہے نا ایک ٹائم پہ پورے کے پورے اتنی بڑی تعداد میں سحری اور افطاری کا انتظام ہوتا ہے۔ کوئی بندہ بھی یعنی کہ یہ نہیں ہے کہتا کہ مجھے سحری نہیں ملی یا افطاری نہیں ملی۔ اسی طرح ایک بڑا وسیع میڈیکل ڈسپینسری کا انتظام کیا جاتا ہے جس میں کوئی لوگ بیمار ہو گئے ہیں، تقریباً 30 بیڈ کا یہاں پہ ایک ہسپتال ہوتا ہے۔ اس میں MBBS ڈاکٹر مختلف ہسپتالوں سے آتے ہیں، وہ 24 گھنٹے یہاں پہ ڈیوٹی میں چل رہے ہوتے ہیں، آن ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو کنٹرول روم ہے ہمارا جس کے اندر وہ 24 گھنٹے یہاں پہ اب ان کی ٹیم موجود ہوتی ہے کہ کسی قسم کی کسی کو کوئی پریشانی ہو، کسی نے کسی کو ملنے آنا ہے تو وہ پورے کا پورا سیٹ اپ ہے۔ اسی طرح ایک مینار ٹی وی کا پورا سیٹ اپ ہے جس سے ڈاکٹر ترقات صاحب کا لائیو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں۔ دیگر چینل کو بھی اسی یہیں سے لنک جا رہا ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا انتظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بلاکس انتظامی ہوتی ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بٹھانے کا پورے کا پورا ان کا سیکورٹی کا یہ سارے کا سارا ان کا سسٹم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب کا جو بھی خطاب ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر بعد ایڈیٹنگ کرنے کے بعد ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے پروڈکشن ہے، مینار پروڈکشن ڈپارٹمنٹ وہ پورے کا پورا یہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے مینار انٹرنیٹ بیورو وہ یہاں پہ آفس موجود ہوتا ہے، جو لوگوں کو آن لائن رجسٹریشن کارڈ جاری کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی 24 گھنٹے یہاں پہ ورکنگ میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یعنی کہ محفل نعت روزانہ ہوتی ہے اور روزانہ رات کو ڈاکٹر ترقات صاحب کا 12 بجے لائیو خطاب شروع ہو جاتا ہے، سحری تک رہتا ہے۔ اچھا سر، یہاں پر تربیت سیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں جو منہاج کا خاصہ ہے۔ ہم لوگ کہیں اور اعتکاف پہ عوام بیٹھتی ہے تو وہ صرف عبادات کے لیے بیٹھتی ہے، ان کی تربیت کوئی نہیں ہوتی، یہاں پر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ سر دیکھیں عموماً جو دوسرے اعتکاف لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہاں پہ آپ ایک مسجد میں کسی کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ اپنا ایک قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں یا کوئی عبادت کرتے رہتے ہیں،
यहाँ पे तरबीती सेशन रोजाना जो है ना 10 बजे से लेकर 1 बजे तक तरबीती सेशन होता है। वो मुअल्लिम आता है, वो हर बंदे से कलमे सुनता है, नमाज सुनता है, उसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक करता है, उसको अगर कुरान मजीद सही पढ़ना नहीं आ रहा तो उसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक कराता है, उसको रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं वो एक, क्योंकि ये इतिकाफ़ गाह बेसिकली यहाँ पे एक ट्रेनिंग वर्कशॉप एक सीखने का अमल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक पूरे का पूरी तरबियत गाह होती है कि हम जब बंदे को यहाँ से भेजते हैं वो 10 दिन के अंदर प्रॉपर कोई ना कोई चीज़ सीख के जा रहा होता है कि ये नहीं होता कि खुद ही कुछ ना कुछ पढ़ता रहे, वो अलग उसको टाइम मिलता है। यानी कि आप उसको सच्चा और पक्का मुसलमान करके भेजें। जी जी, इंशाल्लाह उसको हर चीज़ उसके इबादत के मुताल्लिक, रोज़मर्रा के मुताल्लिक हर चीज़ का एक पूरा सिलेबस हम उसे 10 दिन का देते हैं, एक किताबचा, और डेली के बुनियाद पे उसी के मुताबिक उसका लेक्चर होते हैं। उसके बाद इनफरादी मालूमात के लिए उसको अलग टाइम दिया जाता है जो अपनी इबादत वगैरह करता है और सारे होता है। अच्छा सर, जो इंटरनेशनल दूसरे ममालिक से जो ओवरसीज यहाँ पर आते हैं शहर तकाफ में शमूलियत के लिए, उनको क्या खास प्रोटोकॉल मिलता है कि सेम वही कैटेगरी होती है? सर वो एक काफ़ी बड़ी तादाद तकरीबन 120 कंट्री से आती है, वो उनको सेम वही जो खाना सबको मिल रहा होता है वही मिलता है। हर चीज़ वही चीज़ है। हमारी यहाँ पे सेम चीज़ सबके लिए होती है। हमारे लिए सभी अहम है, हमारे लिए सभी ख़ास हैं, हमारे लिए सभी मेहमान हैं और हम उनके मेज़बान हैं। हम उनका हर तरह का अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं तो उनको एयर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, अगर सर्दियाँ आती तो उसके मुताबिक उनको हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, बिस्तर तक यानी कि हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सर, जब अफ्तारी या सहरी का वक्त होता है तो क्या ओपन सारा दस्तरखान लगता है? नहीं सर, हर एक जो रूम होता है, एक रूम के अंदर 20 लोग या 15 लोग ठहरे होते हैं। वहाँ पे हम उनका एक दस्तरखान होता है और एक अमीर हल्का होता है, उसको एक कार्ड जारी करते हैं, यानी 20 या 30 लोगों का, वो या 20 या 30 लोगों का वहाँ पे खाना अपना रिसीव करता है। और वो उसी तरह महफिल नात होती है इफ्तारी से पहले, और वहीं पे वो खाना सर्व हो जाता है और वो उसी हल्के के तक ही होता है। हर रूम का अलग अलग खाना दिया जाता है। तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे इतनी तादाद में लोगों के लिए जब आप सहरी अफ्तारी अरेंज कर रहे होते हैं तो जो खाना पकाने की प्रिकॉशंस है, क्या आप उनको फॉलो करते हैं? SOPs को फॉलो करते हैं आप? जी जी, SOPs को फॉलो कर रहे होते हैं मुकम्मल। आप हमारा किचन आके विजिट करें, हमने ओपन किचन रखा हुआ है, हमने छुपा कर नहीं रखा हुआ, मीडिया वहाँ पे आता रहता है। हमारे पास जो बावर्ची हैं वो स्टैंडर्ड के हैं, बल्कि जो इस वक्त बावर्ची हमारा खाना बना रहा है वो PC होटल का वहाँ पे रहा है और उसकी भी पूरी टीम है। वो 10 दिन वहाँ से छुट्टी करता है और वो पूरी टीम लेके आता है और स्टैंडर्ड के मुताबिक। अब बकरे का जो गोश्त होता है उमूमन वो क्या होता है कि हम कसाई को कभी ऑर्डर नहीं देते कि जी आप वहाँ से बना, हमारा वहाँ टीम जाती है, वो पहले जिंदा बकरों को चेक करते हैं कि ये मियारी है, बीमार तो नहीं है, उसके मुताबिक अपने ज़िबा कराते हैं और सामने लेके आते हैं। इसी तरह चिकन है, इसी तरह सब्जियां हैं, हर चीज़ हमारी वहाँ टीम बैठी होती है, वो लेके सामने आती है। यहाँ पे फ्रेश चीज़ आ रही होती है और उसके मुताबिक हर चीज़ बन रही होती है। हम बासी चीज़ नहीं देते किसी बच्चों को। टोटल कितने लोग आप यहाँ पर पकाते हैं खाने का? तकरीबन 70 लोग हो जाते हैं। 70 लोग पकाते हैं। 70 लोग पकाते हैं, जिसमें आधे सुबह आधे शाम को? हाँ जी, 2 शिफ्टों में काम है। और मेन्यू आपको पहले बताया होता है उन्होंने? हाँ जी, मैंने पहले बताया। तो ये तो आप फिर सुबह से शुरू होकर रात तक लगे रहते हैं? ऐसी बात है, ये 24 घंटे सर्विस है और इसमें ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं आप, हेल्थ कॉन्शियस काफ़ी? सफाई का, हर चीज़ का मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल है। इसमें स्वाब का आंसर भी तो बहुत ज़्यादा है ना? हाँ जी, इसमें कोई भी चीज़ लोकल इस्तेमाल नहीं करते, सारी ब्रांडेड चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अच्छा सर, जब आवाम यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है ऑर्गेनाइज तरीके से, आपने सबको कैटेगोरिकली उनको रूम्स अलॉट कर दिए, जी जी। उनकी सिक्योरिटी का क्या करते हैं सर? उसकी सिक्योरिटी के लिए जो है ना पूरा जो है ना ब्लॉक्स की सिक्योरिटी होती है, जो वो ब्लॉक पूरे को मैनेज कर रही होती है, जिसके अंदर 10, 15, 20 रूम होते हैं। वो एक ख़ास टाइम के बाद उस यानी कि तराबियों का टाइम या जिस वक्त इबादत का टाइम होता है, जिस वक्त मस्जिद में आना होता है, उसको हम लॉक कर देते हैं ताकि उनकी सामान की सिक्योरिटी और हिफाजत रहे। और उनमें जो गेट है, गेट में हमारी सिक्योरिटी होती है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है चारों गेटों पे, वो 2-3 लेयर्स में होती हैं। वो पूरे का पूरा हमारी जो टीम है वो मैनेज कर रही होती है उसको। अच्छा सर, मैंने देखा है कि शहर तकाफ प्रोग्राम में रज़ाकाराना तौर पर तहरीक मनाज़िल कुरान के जितने मेंबरान हैं वो बहुत आगे शाना बशाना होकर काम कर रहे होते हैं।
ये भी क्या आपकी तरबियत का हिस्सा? जी, ये भी तरबियत का हिस्सा। तकरीबन 1,800 के करीब लोग होते हैं जो अमूमन पूरा साल यानी कि इसी इंतज़ार में रहते हैं, यहाँ पे आके रज़ाकाराना तौर पे अपनी खदमात देते हैं। इनको मैनेज करने में एक बहुत बड़ी टीम होती है, जो सिक्योरिटी में मैनेज कर रहा है, कोई खाने को मैनेज कर रहा है, कोई बाकी पानी, कोई सफाई, बाकी कोई सिक्योरिटी, बाकी हर तरह के मामला चल रहे होते हैं। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि इतनी बड़ी तादाद होती है और यहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ तक कि जिस वक्त चांद रात होती है तो हम तमाम के तमाम लोगों को ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं कि अपने अपने इलाका जात में जाने के लिए, ताकि वो ईद की नमाज जो करीब करीब ज़्यादातर लोग अपने घर में जाके पढ़ते हैं, वो ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम भी हम करके देते हैं। अच्छा सर, खवातीन का सिस्टम टोटल अलहदा है कि वो यहाँ पर इकट्ठा ही चल रहा होता है? सर, ये जो मर्दों का होता है ये एक आगोश कम्प्लेक्स है, उसके अंदर होता है हजूर पीर साहब की दरबार, गौसे दरबार पर। और जो खवातीन का है वो 1 किलोमीटर दूर गर्ल्स कॉलेज है, मिनाज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उनका इंतज़ाम होता है। और वो सारे का सारा इस मेन अफ़गाह से वीडियो लिंक के ज़रिए मुंसलिक होता है। तमाम खिताबात और सारी चीज़ें यहीं से उनको जारी होती हैं, यहीं से उनको तरबियत का पूरा निज़ाम, और बाकी वहाँ पे ख़वातीन ही उसको मैनेज कर रही हैं टोटली, खाना और बाकी तरबियत के मामला। अच्छा सर, यहाँ कोरोना से पहले हमने देखा था कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिर कादरी साहब जो है ना, वो 10 दिन यहाँ पर गौसिया दरबार पर ही टाइम गुजारते थे जी। लेकिन अब वो अब्रॉड बाहर होते हैं, तो उम्मीद है कि इस साल वो यहाँ तशरीफ आएंगे? सर, उनकी मसरूफियात हैं बहुत ज़्यादा। अभी उनके बेटे हैं डॉक्टर हसन साहब, डॉक्टर हुसैन मोइनुद्दीन कादरी साहब, उनके पोते हमाद मुस्तफ़ा और पूरी फैमिली यहाँ पे मौजूद होंगे। और क़िबला हुज़ूर भी 24 घंटे वीडियो लिंक के ज़रिए मौजूद होते हैं। हर लम्हे वो अपने लोगों के साथ अटैच रहते हैं, जो इत्काफ़ में बैठे हुए हैं, खिताबात रोज़ाना करते हैं, तरबियत के टाइम शामिल होते हैं। वो थोड़े से दूर ज़रूर बैठे हुए हैं लेकिन वो हमारे करीब होते हैं। हर बंदा यही समझता है कि हमारे पास है और हमारी ख्वाहिश है कि वो जल्द आए। सर, हम दुआ को हैं कि शहर इत्तेफ़ाक़ जो है वो अपनी पूरी रौनकों के साथ वैसे ही यहाँ पर हंसता बसता चलता रहे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। गुरबट साहब आपका और आपकी टीम का शुक्रिया। थैंक यू।